Hair. Hair has always been a subject of envy and admiration throughout the world. Having beautiful hair is a boon bestowed upon a lucky few only. While the rest of us struggle with our hair every single day, the chosen few walk the earth unaffected, swishing their perfect hair and making us green with jealous. With amazing developments in the beauty industry came another revolutionary procedure for hair, the keratin treatment. Hi, pretty ladies out there. Hope you all are doing good. So, today we'll be talking about keratin treatment. So, keratin treatment के pros, cons. I'll be helping you out with बहुत सारे questions जो आपके mind में होंगे and आप उनके answers ढूंढ रहे होंगे. तो आज मैं बहुत सी queries जो हैं जो आपके मन में हैं उनको क्लियर करूँगी बिकॉज नियर अबाउट 5 to 6 months पहले मैंने अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था एंड इट वॉज केरा स्मूथ ट्रीटमेंट. केराटिन एंड स्मूथनिंग मिक्सड टुगेदर वो करवाया था मैंने. तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊं वो आपको हेल्प करें अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहे हो. तो आपको स्मूथनिंग करानी चाहिए या केराटिन कराना चाहिए, आप उसके बीच में कंफ्यूज हो तो वो भी हो सकता है कि आपको ये वीडियो हेल्प आउट करे. सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक. एक्चुअली मेरे हेयर की लेंथ इतनी है. दिस इज़ हाउ. अब मेरे बाल ऐसे दिखते हैं. So, first of all, what is keratin? Keratin is the major protein which is naturally present in our hair. Not only does the hair contain keratin, it also majorly comprised of keratin associated proteins also. It acts as an external protective and internal structure protein to protect your hair and keep them healthy. Due to exposure to external factors like sun, pollution, or chemicals, or the changes in your lifestyle, the keratin present in the hair gets depleted. This loss is what leads to dry, damaged, and dull hair. What to expect from this treatments? Like this treatment is not permanent. ये कुछ महीनों के बाद rather 4 to 6 months. कई बार आपको पार्लर वाले ये बोलेंगे कि it goes away or it fades away with the washes of your hair. Like आप 60 washes के बाद अपने hair में ये जो shine, ये बिल्कुल स्लीक हेयर है ये आप नहीं देख पाएंगे. सो इट इज़ नॉट परमानेंट. ये चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि दिस थिंग इज़ नॉट परमानेंट. नॉट इवन केराटिन, नॉट इवन स्मूथनिंग. ये 4 to 6 months के बाद ये फेड आउट हो जाता है. ओके. सो बेसिकली व्हाट डज द केराटिन ट्रीटमेंट डू? In keratin treatment, the keratin is artificially added to the hair of the person. So that's why your hair looks shiny, smooth, silky, and frizz free. That is why it is very much popular among youngsters and men, women, every age, every gender. So it is really nice treatment until and unless you know the procedure, the pros and cons of. So, here is the procedure that is followed. You need to pick a day when you are free and have ample amount of time because बहुत टाइम लगता है. मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मुझे पूरा एक दिन लग गया था. It was hectic 8 hours schedule for me. The first step is hair wash. Shampoo is used but not conditioner. Then your hair is got blow dried to remove all the moisture. The next step is application of the keratin solution. Then hair is left to set with that keratin solution. Then another round of blow dry followed by the flat iron to help seal in the solution. Flat iron की help से उस solution को seal करते हैं. This is all what. After one day you will be called again for the next sitting. उसमें flat iron use होगा, blow drying होगी and आपका जो hair wash होगा
that is all done by the parlor people only. Therefore, the end result would be smooth, shiny, manageable hair which will last you at least 4 months or 5 months with a proper hair care regime. Although this treatment doesn't have any proven side effects, its use of formaldehyde has come under the scanner. Formaldehyde use होता है, the chemical has been used in manufacturing of various household products and definitely not considered to be safe. Because of this, mild irritation or infection can be caused to the Done skin by an and expertise eyes only. That's why it's extremely important that the procedure is After the treatment, it is recommended to invest in a good dry shampoos, as you are not allowed to wash your hair or tie them back with a rubber band for at least 48 hours. मैं पूरी रात टिल जब तक वो वॉश नहीं हुआ अपने हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट करके सोई, जिससे कि एक भी बेंड ना आए. ट्राई करना कि ये जो प्रोसीजर है कभी भी ज़्यादा गर्मी में मत करवाना, बिकॉज गर्मी में पसीना आता है, उसकी वजह से मॉइस्चर आता है आपके हेयर में, उसकी वजह से भी स्मॉल बेंड्स जो हैं वो आगे आगे पड़ जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर या पसीना आ रहा है. सो ट्राई करना कि बहुत ही सूदिंग सा मौसम हो जब आप ये ट्रीटमेंट करवाएं. Although your hair becomes more manageable post-treatment, there won't be a significant change to your hair care regime. You still be required to put in extra effort to take care of your hair. Stylists usually advise sulfate-free formula for your shampoo. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शैम्पू बता दूंगी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ सल्फेट फ्री एंड इट इज़ रियली नाइस शैम्पू. लास्ट 6 मंथ से मैं वही यूज़ कर रही हूँ ये शैम्पू अपने एंड हेयर में. कंडीशनर है उन्होंने जो कि एक्चुअली मैं मुझे यूज़ कोई कर रही और हूँ, शैम्पू बताया था, from बट last 6 मुझे months, जो सूट किया जो मैं आपको सल्फेट फ्री शैम्पू. मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी जिससे कि आप भी इसे परचेज कर सकें. ये एवरी साइट, ये हर एक साइट पे अवेलेबल है गेस, बट मैंने अमेज़ॉन से लिया है, तो मैं आपको एक बार अमेज़ॉन का लिंक सेंड करूँगी जिससे कि आप टैप करके वहाँ पे इजीली ये परचेज कर सकते हैं. लुक, इट इज़ क्लियरली रिटन हियर, इट इज़ सल्फेट फ्री. The shampoo and the conditioner, look, it's written here that it's sulfate free. It has worked for me really well. Last 6 months से मैं यही यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे लगता है कि ये कमाल किया, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं कोई और शैम्पू ऑप्ट करूँगी. एंड फर्दर और कभी भी लाइक इन फ्यूचर मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज मेरे हेयर काफ़ी मैनेजेबल है इससे. अब एक प्यारा सा टेक्सचर आ चुका है मेरे हेयर में. लुक, बहुत सारी हेयर ग्रोथ हो गई है. लुक, ये बेबी हेयर है, सारा का सारा ये बेबी हेयर है जो कि बाद में आया है. ट्रस्ट मी, पहले 2 महीने बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है. लाइक सारे डेड हेयर जो हैं वो आपके स्कैल्प से ऐसे झड़ते हैं जैसे कि ऑटम आ गया है, पतझड़ हो रही है और आपके सारे बाल झड़ रहे हैं. मुझे तो एक पॉइंट पे ऐसे लगने लग गया था कि मेरे सिर पे बचेगा ही कुछ नहीं, बिकॉज आई वॉज अ पोस्टपार्टम मदर ऑल्सो. जब मैंने ये करवाया था, आई गेस मेरा बेबी, मैंने ये अक्टूबर में करवाया था एंड जून में ही मेरा बेबी हुआ था. तो लुक, इतने कम स्पैन में अपने पोस्टपार्टम टाइम के बाद ही मैंने ये ट्रीटमेंट करवा लिया था. एक तो पोस्टपार्टम टाइम का हेयर फॉल हो रहा था, दूसरा मैंने ये ट्रीटमेंट करा लिया. मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, मगर ऑनेस्टली आफ्टर 2 मंथ्स मैंने रेगुलर हेयर ऑयलिंग फिर से स्टार्ट करी. अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखा, लाइक ऑयल्स यूज़ किए, कैरियर ऑयल्स, नॉर्मल ऑयल्स. एक ऑयल है जो मैं लास्ट 4 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने खुद बनाया है, दैट इज़ कलौंजी ऑयल, और 2-3 ऑयल्स और मिक्स करके कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के वो मैंने बनाया है. अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में नीचे. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बता दूँगी कि मैंने ऑयल कैसे बनाया है एंड मैं कैसे यूज़ करती हूँ, कितनी बार यूज़ करती हूँ, वॉश करने से पहले, वॉश करने के बाद यूज़ करती हूँ एंड ऑल एवरीथिंग. सो ट्रीटमेंट के बाद 2 मंथ्स तक आपको वो बोलते ही हैं कि यू आर नॉट सपोज टू यूज़ हेयर ऑयल.
ना ही टाई करना है ज़्यादा, जैसे कि अगर आप टाई कर रहे हो, बहुत ही लाइट से टाई करती थी मैं, स्क्रंचीज़ वगैरह के साथ यूज़ करती थी। मेन चीज़ें जो मैंने यूज़ की वर सैटिन के स्क्रंचीज़ लिए मैंने, सैटिन के ही पिलो कवर्स लिए मैंने, जिससे कि मेरे बाल टैंगल्ड रहे। बीच में मैंने ना हेड बोनेट भी ट्राई किया था सिल्क का, मगर उसकी वजह से मेरे सिर में इतनी दर्द हो गई थी ना, मैंने वो वैसे के वैसे ही रखा है और वो मैंने यूज़ नहीं किया उसके बाद। मगर मैंने सिल्क का जो पिलो कवर है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड इट इज़ रियली नाइस। आई कैन टेल यू, आई कैन गिव यू द लिंक फॉर दैट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू। बट अगर आप घर में भी सैटिन का कोई नॉर्मल क्लोथ लेके सिलना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, इट विल वर्क फॉर यू। सो जो मैंने केयर की है आफ्टर द ट्रीटमेंट, पहले 2 दिन तो मुझे बिल्कुल ऐसे क्लियोपैट्रा की तरह रहना पड़ा है। मैं बिल्कुल भी बेंड ना आए, मुझे टेंशन थी कि कहीं पे भी बेंड आया तो इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं पूरा टाइम अपने बाल ऐसे रख रही थी और ऐसे बीच में से चीर निकाल के ऐसे ही रखे। जैसे ही 2 महीने हुए हैं मैंने अपने बालों को हाइड्रेट करना शुरू किया। एक तो सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ किए, दूसरा मैंने अपने स्कैल्प को हाइड्रेट करना शुरू किया कोकोनट ऑयल से, कैस्टर ऑयल से। इवन सबसे ज़्यादा हेल्प किया मुझे रोज़मेरी ऑयल ने। रोज़मेरी ऑयल मुझे काफ़ी पसंद आया एंड मैंने वो काफ़ी यूज़ किया। उसकी वजह से मैंने एक चीज़ देखी कि देखो, टाइनी टाइनी हेयर ग्रोथ हो रखी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हर जगह आ रखी है। देखो फिर बढ़ना शुरू है, फिर मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि हाँ बाल आ रहे हैं, बाल वापस आ रहे हैं। सो दिस वॉज माई होल जर्नी ऑफ गेटिंग द ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर मैंने क्या की, मैंने आपको हर एक स्टेप बताया है। अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप छूट गया है और आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी टाइम, एनीवेयर। सो नेक्स्ट थिंग वी कैन डिस्कस अबाउट इज कॉस्ट। कॉस्ट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर किसी के माइंड में कि कॉस्ट कितनी आएगी। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे बालों की लेंथ लो, this much long, or I can show it like this much long. तो मेरे जो हेयर है काफ़ी लॉन्ग है, तो उस टाइम ऑफर टाइम चला था तो आई गॉट इट डन इन 9,000 ओनली। बट दे टोल्ड मी अगर ऑफर नहीं चल रहा होता तो इट वुड हैव कॉस्ट मी अराउंड 13,000 to 14,000। बट बेसिकली ये आपके बालों की लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना कॉस्ट आएगा एंड द पार्लर दैट यू आर चूजिंग, किस सैलून में आप करवा रहे हैं एंड कौन से एरिया में करवा रहे हैं, लाइक पंजाब, हिमाचल एंड एनी अदर स्टेट। According to me, mainly it costs around 5 to 6,000 for normal length. बाकी it varies, मैंने आपको जैसे बताया कि it varies according to the length, the person you are getting from it, and the place where you are going to get it done. Okay.
सो कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, और कुछ आपके दिमाग में है तो वो भी, एंड और कोई चीज़ आप पूछना चाहें, लाइक लिंक फॉर द प्रोडक्ट्स और द recipe for the oil that I am using, and anything else if you want to ask, you can comment down in the video. And मैं जो मेन क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पूछे गए होंगे, आई पिन देम डाउन, जिससे कि हम वो उसके आंसर्स मैं दे सकूँ. नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द क्वेरीज, द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, एंड होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज प्रूव्ड रही होगी, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिली होंगी. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. आपने इतनी देर ये बात सुनी और मेरे साथ बात की. सो बाय बाय, अलविदा, सायोनारा, टेक केयर प्रिटी लेडीज.